Good morning students, welcome in online classes. My dear student, yesterday we have discussed about that Sangam literature and how the Sangam literature and Sangam period started in south part of India, especially Tamil Nadu, Kerala and other part of South India, and which ruler protect the Sangam literature and how the great poet and writer of this age have left behind the invaluable sources. Today we have discussed about the Sangam literature and development of the literary work. So student, please all of you open your book and see that some important and different and difficult word also come in this chapter. So please don't face the difficulties. In this period, means the period of Sangam literature, there are so many writers and the poets write so many important textbook and various Tamil texts like Silapattikiram, Mani Kaliki, Patu Patu, Tolkappiyam, etc. were also grouped under the Sangam literature. Student, so many writers and especially the Sangam literature established by the Pandya scheme. Sangam literature was primarily secular, dealing with the everyday themes in Tamilakam context, and the poem also throw the light on the history of Tamil Nadu. The poem and the poets also throw the light of Buddhism and Jainism and its position during that period, contemporary arts and culture and customs of that time. अगर हम आपको हिंदी में बताएं तो इसका मतलब ये होगा कि संगम लिटरेचर का जो विकास हुआ, जो तमिल लिटरेचर का कलेक्शन हुआ, वो 600 BCE से लेकर 300 BCE तक हुआ. क्योंकि संगम क्या था? एक एसोसिएशन था, एक एकेडमी थी जो तमिल पोएट के लोगों के द्वारा बनाई गई थी और इसमें राजाओं का बहुत सारा सहयोग भी मिला था. स्पेशली पांड्या किंग जो थे वो संगम को इस्टेब्लिश किए हैं और इसमें तमिल पोएट्स को इम्पॉर्टेंट जो रिसोर्सेज थे उसको अवेलेबल करवाएं. और इन्हीं के वजह से जो डेवलपमेंट हुआ, वेरियस तमिल टेक्स्ट बुक का जो डेवलपमेंट हुआ, जैसे लिखा हुआ है शिला पाड़िकरम, मैन्यू पाटू पाटू, टोलकाप्पियम एटसेट्रा, ये सारे संगम टेक्स्ट बुक हैं. इसके अलावा संगम लिटरेचर में जो स्पेशली जो पोएम है या जो पोएम के अलावा जो पोएट ने जो राइटिंग अपना जो टेक्स्ट बुक लिखे हैं वो तमिलनाडु के पोजीशन पर, तमिलनाडु के कल्चर पर, आर्ट पर फोकस किया है. बुद्धिज़्म को भी उन लोगों ने स्पेशली उस पर प्रिंसिपल पे लाइट थ्रो किया है. एंड आल्सो द कंटेम्प्रोरी आर्ट्स एंड कल्चर द कस्टम ऑफ दैट. अगर हम देखें तो नंबर ऑफ सीरियल टेक्स्ट और इसके थीम क्या हैं, जैसे शिला पाटिकरम किसके लिए बनाया है? डिटेल बोथ द क्लासिकल एंड फॉक फॉर्म, द डांस एंड म्यूजिक के बारे में है. दूसरा अगर हम देखें तो लिखा है मैनी मैकाली, जिसमें एपिक पोएम लिखा गया है विच थ्रो लाइट ऑफ हिस्ट्री ऑफ तमिलनाडु. सो स्टूडेंट, some important changes in the history and especially the literary work. If you see, the poet of this period used grammar composed by scholars like Agastya and Tolkappiyam. Tolkappiyam, one of the earliest work in Tamil, is a book of the phonology, grammar and poetics. So Sangam literature give detail regarding the nature of polity, economy, society and the physical feature of Tamilakam. According to Sangam literature, it existed 5 ecozones. कौन-कौन से 5 ecozones? Which consisted of forest, hill, desert, coastal region and fertile plains. So student, all these regions had different pattern of economic and social life and there existed in even डेवलपमेंट. कह सकते हैं कि जो संगम लिटरेचर का डेवलपमेंट हुआ या संगम लिटरेचर की अगर हम बात करें तो संगम लिटरेचर रेफर टू द बॉडी ऑफ क्लासिकल तमिल लिटरेचर कलेक्टेड एंड कंपोज बिटवीन द ईयर्स 600 BC to 300 BC. Hundred of inscribed the uninscribed memorial stone been found in the various part of the peninsula, especially in Karnataka, Andhra Pradesh, Tamil Nadu and Kerala. They give the through the light of the Sangam age and also give the light of the Buddhism, Jainism and culture of Tamil Nadu. So student, in this
lecture we have seen about that how the Sangam literature developed and what was their main important literary work. The Sangam literature give the picture of a primitive society. किस तरह की सोसाइटी के बारे में बताता है? Primitive society and transformation of this primitive society into a developed one, जो कि कहीं ना कहीं इसमें कोई ना कोई ट्रांसमिटिव सोसाइटी में चेंजेस हो रहा था और उसी के बारे में ये बताता है. इज रेफरेंस टू माइग्रेशन ऑफ ब्राह्मण एंड बुद्धिस्ट इनटू साउथ इंडिया, और इसी के वजह से बहुत सारे ब्राह्मण और बहुत सारे बुद्धिस्ट साउथ इंडिया में पहुँचे. These infuse certain changes in the South Indian society and then introduction of वर्ना सिस्टम, और इसी के बाद से वर्ण सिस्टम स्टार्ट होता है. जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा तिरुक्कुरल. तिरुक्कुरल क्या था? इट इज अ लैंग्वेज इन तमिल टेक्स्ट. जो तिरुक्कुरल था, तिरुक्कुरल वाज अ लैंग्वेज ऑफ द तमिल टेक्स्ट. ओके, तिरुक्कुरल कंसिस्टेड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लिटरेरी वर्क इन तमिलनाडु, और मैक्सिमम तमिल लिटरेचर जो लिखे गए हैं वो सारे का सारा जो लैंग्वेज है वो तिरुक्कुरल लैंग्वेज में लिखा गया है. इट वॉज कंपोज्ड बाई तिरुवल्लुवर. पोएट थे ये तिरुवल्लुवर, जिन्होंने तिरुक्कुरल लैंग्वेज का यूज करके तमिल टेक्स्ट को कंपोज किया. एंड तिरुक्कुरल इज अ वर्क ऑफ 330 couplets. द वर्क ऑफ अरेंज वन अमंग द 33 adhikarams, which are further divided into three major groups known as Aram, Porul and Inbam. That is the three important major group. Those are divided through the adhikarams, which further divided into the three important major group Aram एंड पॉरुल एंड इनबाम. बेटा आपको शायद वर्ड से डिफ़िकल्टीज महसूस हो रही होगी, लेकिन इजी है, बहुत इजी चैप्टर है. हम इसमें केवल लिटरेचर, संगम लिटरेचर, संगम के इंस्क्रिप्शन, तमिलनाडु साउथ इंडिया के इंस्क्रिप्शन के बारे में, कॉपर प्लेट के बारे में, लिथिक इंस्क्रिप्शन के बारे में इसमें हम पढ़ेंगे. ओके, नाउ आराम रिप्रेजेंट द वर्च्यू. पॉरुल डिफाइंस द प्रिंसिपल ऑफ लाइफ ऑफ कॉमन पीपल एज वेल द स्टेट, वेयर एज इनबाम सेक्शन डील्स विथ एस्पेक्ट्स ऑफ लव. जो आराम, पॉरुल और इनबाम लिखा गया था ये तमिल सोसाइटी के बारे में और तमिल के जो कॉमन पीपल थे उनके लाइफ के प्रिंसिपल ऑफ लाइफ के बारे में बताया गया है. ओके, चूँकि जो तिरुक्कुरल थे वो एक जैन धर्म के मानने वाले रचनाकार थे. इट इज़ बिलीव दैट मोस्ट ऑफ वर्क रिलेटिंग टू द फर्स्ट टू संगम डेल्ट द म्यूजिक एंड डांस. लगभग ऐसा माना जाता है कि बहुत सारे जो संगम लिटरेचर के फर्स्ट टू संगम के लिटरेचर थे उनमें म्यूजिक और डांस के बारे में स्पेशली फोकस किया गया था. अनफॉर्चुनेटली ऑल द वर्क ऑफ दीज टू संगम्स आर लॉस्ट एस्पेक्ट फॉर तोलाकप्पियम. तोलाकप्पियम के अलावा बाकी जो भी टेक्स्ट बुक थे वो हमारे बीच में तो नहीं है, लेकिन इससे भी हम बहुत सारी चीज़ों को जानते हैं. Anyway, tomorrow we are going to discuss about that inscription of the Sangam list. Thank you, student. So please one time again you also read the chapter, then you are able to understand. Thank you.